السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلاغہ خامسہ۔ تو ہم لوگوں نے مجاز لغوی یعنی استعارہ کے بارے میں کچھ تھوڑی موڑی چیزیں سیکھ لی تھیں۔ اب اس کی بقیہ چیزوں کو ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ بحث کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں کہ الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز ہے۔ حقیقت بولتے ہیں جو لفظ اپنے اصلی معنی میں استعمال کیا گیا ہو، اور مجاز کہا جاتا ہے کوئی ایسا لفظ جس کو اس کے علاوہ معنی میں استعمال کیا گیا ہو جس کے لیے وہ بنایا گیا ہو، یعنی جس معنی کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہو اس معنی کے علاوہ معنی میں اس کو استعمال کیا گیا ہو۔ ایک مثال ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، 2-3 مثالیں اور باقی ہیں۔ یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مثالوں میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو انہی معنوں میں استعمال کیے گئے ہیں جن معنی کے لیے ان کو بنائے گئے تھے، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو دوسرے معنی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ جیسے فلم ارا زرغامین اصدق منکما عراقا اذا الحیابۃ النکس کذبا حزبر مشا یبغی حزبرا واغلب من القوم یغشا باصر الوجہ اغلبا۔ فلم ارا زرغامین، میں نے 2 شیروں کو نہیں دیکھا جو تم دونوں سے زیادہ سچے ہوں لڑائی کے اعتبار سے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ شیر بہتری کا ہے، اور یہ فتح بن خاقان کی لڑائی شیر سے ہو گئی تھی، تو اسی کا یہ بیان کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم دونوں شیروں سے لڑائی کے اعتبار سے سچے اور کوئی شیر نہیں دیکھے۔ ایک شیر ہے جو شیر تلاشتا ہوا چلا، حزبر مشا یبغی حزبرا، شیر چلا شیر تلاشتے ہوئے۔ تو ظاہر ہے یہ فتح بن خاقان کو بھی شیر کہا ہے، اور یہ شیر کے شکار کے لیے گیا تھا، تو اسی کو پہلے حزبر سے فتح بن خاقان مراد ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں حزبر جو لفظ اصلی معنی میں ہے، یہ جنگل کے خوفناک جانور کو بیان کرنے کے لیے لفظ بنایا گیا تھا، نہ کہ کسی آدمی کو بیان کرنے کے لیے۔ تو حزبر جس سے مراد فتح بن خاقان ہے یہ مجازی معنی میں ہے، اور جس شیر کو وہ تلاش رہا تھا یعنی حزبر ثانی، یہ حقیقی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قال المتنبی وقد سقط مطر علی سیف الدولہ، متنبی کا ایک شعر ہے، متنبی نے ایک شعر کہا ہے جبکہ سیف الدولہ پر بارش ہو رہی تھی اور متنبی سیف الدولہ کے ساتھ تھا، تو بارش کو دیکھتے ہوئے کیا کہا، لعینی کل یوم منک حظ تتحیر منہ فی امر عجابی حمالۃ ذی الحسام علی حسام۔ کہا کہ اس تلوار کا پرتلا تلوار پر ہے۔ تلوار کسے کہا ہے؟ بجلی جو چمکتی ہے، اور بادل جو کہا ہے اس کا پرتلا جو پانی ہے، کہا اس کا پرتلا تلوار پر ہے، سیف الدولہ پر ہے۔ موقع ذی السحاب علی سحاب، اور اس بادل کا واقع ہونا بادل پہ ہے۔ وہ بادل کہاں برس رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وہ بادل تو بادل پہ برس رہا ہے، یعنی ایک بار سیف الدولہ کو اس نے حسام کہا ہے، اور ایک بار سیف الدولہ کو اس نے سحاب کہا ہے۔ آپ اس شعر میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ حمالۃ ذی الحسام علی حسام وموقع ذی السحاب علی سحاب، اس میں دونوں طرح سے بات، دونوں مصروں میں ایک بار حسام استعمال کیا ہے مجازی معنی میں، اور ایک بار سحاب مجازی معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو جس حسام سے مراد سیف الدولہ ہے اور جس سحاب سے مراد سیف الدولہ ہے، وہ سحاب مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں
किसी कलमे को मजाजी माने में इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है, यानी मजाजी माने में इस्तेमाल करने का मतलब कि उस लफ्ज़ को जिस माने के लिए बनाया गया हो उस माने में इस्तेमाल ना करके दूसरे माने में इस्तेमाल किया जाए। जिस माने के लिए उसको बनाया गया हो उस माने में इस्तेमाल ना करके दूसरे माने के लिए उसको बनाया जाए, उसी को मजाजी माना बोलते हैं, दूसरे माने में इस्तेमाल किया जाए। जैसे सहाब जो लफ्ज़ था इसको बनाया गया था जिससे बारिश होती है, लेकिन इससे मुराद एक सखी सैफुद्दौला को ले लिया गया, तो कहा जाएगा ये कलमा मजाज है। तो मजाज क्या होता है? मजाज लुग़वी की तारीफ़ क्या है? ऐसा लफ्ज़ जिसे दूसरे माने में इस्तेमाल किया गया हो, जिस माने के लिए उस लफ्ज़ को बनाया जा रहा हो उस माने में ना इस्तेमाल करके उस लफ्ज़ को दूसरे माने में इस्तेमाल किया जाए, यही है मजाज़ लुग़वी। लेकिन वहाँ कोई इलाक़ा हो, किसी इलाक़ा की वजह से, और कोई करीना हो, कोई इलाक़ा हो और कोई करीना हो। इलाक़ा जो है मुशाबहत का भी हो सकता है और गैर मुशाबहत का भी हो सकता है। करीना लफ्ज़िया भी हो सकता है और हालिया भी हो सकता है। अभी मैंने जो मिसाल दी, जितनी मिसालें दी, सब में आप इलाक़ा मुशाबहत का देख रहे हैं, और इसमें किसी में करीना लफ्ज़िया है और किसी में करीना हालिया है। करीना लफ्ज़िया का मतलब होता है कि लफ्ज़ से पता चले कि यहाँ ये लफ्ज़ हकीकी माना में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। जैसे आपने ऊपर की मिसाल में देख लिया, शम्सुन तुज़ल्लिलुनी मिनश शम्सी, शायर ने कहा एक सूरज है जो मुझे धूप से बचा रहा था। सूरज, शम्सुन तुज़ल्लिलुनी मिनश शम्सी, एक सूरज है जो मुझे सूरज से बचा रहा था। तो कौन सा सूरज होता है जो धूप से बचाए? जाहिर है कोई भी सूरज धूप से बचाने वाला नहीं होगा। सूरज धूप बांटने वाला होता है, तबिश फैलाने वाला होता है सूरज। तो जाहिर है किसी खूबसूरत चेहरे वाली को कहा होगा शम्स, किसी वजीउल वजह को शम्स कहा है। यहाँ शम्स जो इस्तेमाल किया है किसी वजीउल वजह के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं तुज़ल्लिलु, ये लफ्ज़ बता रहा है कि शम्स, पहला शम्स जो इसमें है शम्सुन तुज़ल्लिलु मिन शम्स, इसमें लफ्ज़ तुज़ल्लिलु बता रहा है कि ये लफ्ज़ अपने हकीकी माना में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी हकीकी सूरज धूप ही देता है, साया नहीं देता है। चलिए, बोहतरी कह रहे हैं इदल ऐनु राहत वहिया ऐनुन अलल जवा, इदल ऐनु राहत वहिया ऐनुन अलल जवा, जब आँख महसूस करती है इस हाल में कि वो तकलीफ पर जासूस है। आँख महसूस करती है और तकलीफ की वो जासूस है, क्या बेहतरीन ताबीर है। हमारे पैर के अंगूठे में दर्द हो तो आँख को महसूस हो जाता है, और आँख महसूस करके दूसरे लोगों को आँख बता भी देती है। दिल के अंदर कहीं दर्द हो या जिस्म के अंदर कहीं दर्द हो, तुरंत आँख महसूस करके लोगों के सामने उस राज को फाश कर देती है। जिस्म की कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए हमारी जो आँख है ये जासूस है। इदल ऐन राहत, आँख ने महसूस किया इस हाल में कि वो तकलीफ़ के लिए आँख है, तकलीफ़ के लिए जासूस है। फलैसा बिस्सिर्रिन मा तुसिर्रुल अदालियो, तो जब आँख महसूस करके वो राज का पता लगा लेती है आँख, फलैसा बिस्सिर्रिन, तो राज रह ही नहीं सकती है वो चीज़ जिसे पसलियाँ राज के तौर पर रखें, यानी दिल, जिसे दिल छिपा के रखें वो राज हो ही नहीं सकती है। जिस चीज़ को दिल छिपा के रखें वो चीज़
राज हो ही नहीं सकती है इस वजह से कि आँख उसको बयां कर देगी। यहाँ आप देख रहे हैं 2 बार आइन आइन का इस्तेमाल किया गया है। एक आइन इसमें आइन हकीकी है, जब आँख महसूस करती है यानी आँख समझ लेती है इस हाल में कि वो तकलीफ पर जासूस, और दूसरे जो आइन है वो जासूस के माने में इस्तेमाल किया गया है। दूसरा आइन ये जासूस के माना में इस्तेमाल करना आइन को, ये हकीकत नहीं है बल्कि ये मजाज है, और ये ऐसा मजाज है कि इसमें अलाका मुशाबहत का नहीं है। ये ऐसा मजाज है कि इसमें अलाका मुशाबहत का नहीं है बल्कि अलाका गैर मुशाबहत का है, और यहाँ अलाका जुज़ियत का है, क्योंकि आइन जो है ये जासूस का जुज़ है और अहम जुज़ है। इस वजह से एक अहम जुज़ को बोल करके पूरे जासूस को और कुल को मुराद लिया गया है। ऐसा आप आइंदा असबाब में बहुत सारा पढ़ेंगे, बहुत सारा जुमला पढ़ेंगे कि उसमें जुज़ बोल करके कुल मुराद लिया जाता है, कहीं कुल बोल करके जुज़ मुराद लिया जाता है, कहीं सबब बोल करके मुसब्बब मुराद लिया जाता है, कहीं मुसब्बब बोल करके सबब मुराद लिया जाता है। इस तरह आप अगले दुरूस में महसूस करेंगे और समझ पाएंगे। तो मजाज लुग़वी क्या है? अल-मजाज़ लुग़वी हुवा लफ़्ज़ अल-मुस्तअमल फ़ी गैर मा उदिया लहू। मजाज लुग़वी वो ऐसा लफ्ज़ है जिसे इस्तेमाल किया गया हो उस चीज़ के अलावा माने में जिस माने के लिए कि उसको बनाया गया था, किसी करीने के साथ, किसी इलाका की वजह से, किसी रोकने वाले करीने के साथ जो असली माना मुराद देने से रोके। इलाका कभी मुशाबहत का होता है, कभी गैर मुशाबहत का होता है, और करीना कभी लफ्ज़िया होता है और कभी हालिया होता है। नीचे की चंद मिसालें आप देख सकते हैं, इनमें आप जब देखेंगे तो महसूस करेंगे कि देखो किस तरह अल्फाज हकीकी माने और मजाजी माने में इस्तेमाल किए गए हैं। अबू तय्यब ने कहा जिस वक्त तो मिस्र में बुखार ज़दा हो गया था, मुतनब्बी ने एक शेर कहा, फ़इन अमरद फ़मा मरदस्तबारी व इन उहमम फ़मा हुम्मा अतिज़ामी। फ़इन अमरद, कहा अगर मैं मरीज़ हो गया हूँ तो क्या हुआ, मेरा सब्र मरीज़ नहीं हुआ है। मैं बुखार ज़दा हो गया हूँ, मेरे हौसले को बुखार नहीं हुआ है। बहुत अच्छा लगा। फ़इन अमरद फ़मा मरदस्तबारी, अगर मैं मरीज़ हो गया हूँ तो कोई बात नहीं है, मेरा सब्र मरीज़ नहीं हुआ है। और अगर मैं बुखार से मैं मुब्तला हूँ, बुखार ज़दा हूँ, तो मेरा अज़्म और हौसला बुखार ज़दा नहीं है। अब आप देख रहे हैं कितना साफ साफ इसमें एक लफ्ज़ को, मुतनब्बी का बीमार हो जाना, मरीज़ हो जाना, ये हकीकी माने में आदमी मरीज़ होता है। सब्र का मरीज़ होना, सब्र कोई इस चीज़ नहीं है, कोई हिस्सी चीज़ की वो उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस घुस करके उसको मरीज़ कर रहे। सब्र मरीज़ नहीं होता है, सब्र कम होता है, ज़्यादा होता है ना। एक मानवी चीज़ है, ये महसूस, ये हिस्सी चीज़ नहीं है। तो कहा कि अगर मैं मरीज़ हो गया हूँ, फ़इन अमरद हकीकी माना में है, मेरा सब्र मरीज़ नहीं हुआ, ये मजाजी माना में मरदा। दूसरा मतलब व इन उहमम फ़मा हुम्मा अतिज़ामी, और अगर मैं बुखार ज़दा हो गया हूँ तो क्या हुआ, मेरे हौसले को बुखार नहीं हुआ है। मेरा इंसान का बुखार ज़दा हो जाना, मुतनब्बी का बुखार ज़दा हो जाना, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन उसके अज़्म व हौसले को बुखार ज़दा होना, हौसले को बुखार होना, ये मजाजी माना है। इसी तरह से मुतनब्बी ने एक शेर कहा, जबकि हीना अंदर साहब बिलमतर वकाना मा ममदूई, जिस वक्त बादल ने बारिश से खौफ दिलाया, बादल था, मुतनब्बी सैफुद्दौला के साथ था, और बादल उठा, गरजा, चमका, लगा कि ये बारिश होगी। तो मुतनब्बी ने क्या कहा, तारज़ल लिस्सहाब वक़द ग़फ़लना, बादल हमारे लिए ज़ाहिर हुआ जबकि हम पलट चुके थे। फ़क़ुल्तु इलैका, मैंने उस बादल से कहा रुक जाओ, मेरे साथ भी बादल है। मैंने कहा है बादल
तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बादल तो मेरे साथ साथ चलता है। अब जाहिर है जो आसमान में गरजा चमका, प्रश्न की तैयारी की है, जाहिर है वो हकीकी माना में वो बादल है, वो सहाब है। लेकिन वो सहाब जो उसके साथ था, मुतनब्बी के साथ था, यानी सैफुद्दौला, ज़ाहिर एक सखी आदमी को उसने कहा है, वो हकीकी सहाब नहीं हो सकता है, यहाँ मजाजी माना में है। एक और शायर ने कहा, बिलादी अजीज़तुन व इन जारत अलैया, मेरा मुल्क प्यारा है अगरचे मेरे ऊपर जुल्म करे, व कौमी किराम व इन ज़न्नु अलैया, और मेरी कौम के लोग सखी हैं अगरचे मेरे साथ बखीली करें, मेरे लिए बखीली करें तो क्या हुआ, लेकिन मेरे कौम के लोग हैं सखी, वो ठीक है। कौम के लोग सखी होना और बखील होना, ये बात समझ में आती है। मुल्क, मेरा मुल्क प्यारा है अगरचे मेरे ऊपर जुल्म करे। मुल्क का जुल्म करना, मुल्क, कोई मुल्क किसी पर जुल्म करता है नहीं, मुल्क के बाशिंदे जुल्म करते हैं। कोई मुल्क किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। कोई मुल्क को मुल्क के बाशिंदों के माने में लेना, मुराद लेना, ये मजाज है। क्योंकि मुल्क बनाया गया था, जो मुल्क हम लोग समझते हैं, उसकी सरहदें होती हैं, उसमें जान नहीं होती, वो मिट्टी है, वो ज़मीन है, और ज़मीन के उसके कुछ हदूद अरबा हैं और कुछ उसकी सरहदें हैं, बस उसी का नाम मुल्क दे दिया जाता है। और कोई मुल्क जुल्म नहीं करता है, बल्कि उस मुल्क के बाशिंदे जुल्म करते हैं। तो मुल्क मुराद लेकर के मुल्क के बाशिंदे मुराद लेना, ये हकीकत नहीं है। कि मजाज तो ये होता है ना, किसी लफ्ज़ को बोला जाए और उसको उस माने में इस्तेमाल किया जाए जिस माने के लिए उसको ना बनाया गया है, जिस माने के लिए उसको बनाया गया उसके अलावा माने में उसका इस्तेमाल किया जाए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से हकीकत और मजाज है। हकीकत और मजाज में समझता हूँ समझ गए होंगे। तमरीन नंबर 1 आप लगा के लाइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।